السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی شیخ نور میاں صاحب ہیں، اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم نور صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضی اللہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا بے انتہا فضل ہے۔ میں ہمارے احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں شامل ہونے کے حالات کا ذکر کرنے سے پہلے میں اپنی ایک مختصر خواب کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو خواب ہے وہ میرے خاص طور پر میرے ایمان کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے ایک ذریعہ بنی تھی۔ تو وہ مختصر خواب کو میں پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنے جماعت میں شامل ہونے کے جو حالات بنے ہیں اس کا ذکر کروں گا۔ دراصل خواب یہ تھی کہ میں نے جو ہے وہ جماعت پہ داخل ہونے سے چند سال پہلے غالباً جو ہے میں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا رضی صاحب کہ ایک بہت ہی جو ہے وہ نورانی چہرے والے شخص جو ہے وہ پہاڑیوں کے دامن سے جو ہے ہوتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان کے چہرے میں جو نورانی تھی وہ اس قدر جو تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ نور سے منور چہرہ تھا۔ تو وہ ہماری طرف جب آ رہے تھے تو ان کے سر پہ میں نے ایک ٹوپی دیکھا تھا، جو اس سے پہلے کبھی بھی میں جو ہے وہ ٹوپی کو کہیں بھی دیکھا نہیں تھا، یعنی میرے تصور میں بھی نہیں تھی۔ دراصل وہ ایک جنہ کیپ تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ خواب دیکھا اس سے پہلے کبھی یہ ٹوپی کو میں نے دیکھا نہیں تھا۔ بہرحال یہ خواب میں مجھے جو ہے یہ بتایا گیا تھا ایک معنوں میں کہ وہ شخص جو تھا وہ ہمارے لیے ایک رہنما کے طور پر تھا جو ہماری طرف آ رہا تھا۔ وہ خواب تو اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں جب ہم جماعت میں داخل ہوئے تو مجھے جب یہ ٹوپی پہلی مرتبہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، جب جماعت کے مبلغین ہمارے یہاں آئے تھے اور عمراء کرام جب آئے تھے تو ان کے سر کے اوپر یہ ٹوپی دیکھ کے میں حیران ہو جاتا تھا اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یہی وہ ٹوپی ہے جو میں اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ کیونکہ وہ خواب بالکل مختصر تھی، لیکن میرے دل و دماغ پر ایسا جو ہے وہ چھاپ چھوڑ گئی تھی کہ میں اس کو بھول نہیں سکتا تھا۔ تو بہرحال پھر جب میں پہلی مرتبہ میرے والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ قادیان ہم وفد کے ساتھ گئے تھے، اس وقت قادیان کے جلسہ سالانہ پہ ہم نے اکثر لوگوں کو جب یہ ٹوپی پہنتے ہوئے دیکھا تو میرا ایمان اور روز روشن کی طرح جو ہے پختہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہی لوگوں کے متعلق مجھے جو ہے اپنی خواب میں بتایا تھا کہ یہی لوگ ہوں گے جو اس قسم کی ٹوپی پہننے والے تھے، جو ہمارے لیے جو ہے ایک رہنما کے طور پر، کیونکہ ان کے چہرے پہ بہت نور مجھے دکھائی دیا تو یہی اس کا مطلب ہوگا۔ یہ میرے دل کو جو ہے اطمینان پہنچانے والی بات ہوتی تھی ہمیشہ، کیونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس سے پہلے کبھی بھی میں ایسی ٹوپی والوں کو دیکھا نہیں تھا۔ ہمارے یہاں جو غیر احمدی کے بڑے بڑے علماء بھی ہوتے ہیں، ان کے سروں پہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے سفید قسم کی، وہی ٹوپی میں نے دیکھا ہے اور اسی کو ہم جو ہے مسلمانوں کی ٹوپی تصور کیے ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن جب ہم نے یہ چیز دیکھا تو مجھے ایک قسم کی جو ہے اطمینان ہوتی تھی کہ یہ جو ٹوپی اکثر جماعت احمدیہ کے لوگ پہنتے ہیں تو یہی جو ہے ہمارے لیے راہ ہدایت بنی ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، میں نے بتا دیا۔ تو ہم دراصل سن 1996 میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمایا۔
उस वक़्त के मज़हबी हालात या यूँ समझो हमारी ज़िंदगी, तमद्दुनी ज़िंदगी का कुछ नक्शा मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हालत से हमको जो है वो अल्लाह ताला ने महज़ अपने फ़ज़ल से जमात अहमदिया के ज़रिए से किस हालत में लेके आया है। हम पहले किस हालत में थे, फिर जमात अहमदिया के ज़रिए से हमने किस हालत में आए हैं, ये मेरा बताने का मकसद है। बावजूद जैसा कि आपने हदीस सुनी होगी बारहा, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि मुसलमान के बज़ाहिर नाम तो होंगे, लेकिन वो अमल से खाली होंगे। ऐसी हालात कुछ जो है वो हमारे इलाके में भी हैं। हम पैदाइशी मुसलमान तो हैं, लेकिन हमारे इलाके में जो है वो हिंदुओं के जो है रस्म और रिवाज का काफ़ी असर था। हम इतने असर था कि हम अक्सर देवी देवताओं को भी जो है वो उस पर भरोसा रखते थे, और फिर जो है हम पत्थरों की भी पूजा करते हैं उस ज़माने में। फिर ये सिर्फ़ जो है वो हमारे अकेले की हालत नहीं है, बल्कि आज तक भी जो है मुसलमानों की यही हालत है उस इलाके में। तो चूँकि मुसलमान थे, माहौल पूरा हिंदुआना था, रस्म-ओ-रिवाज का पूरा जो है वो ताबेदारी हुआ करती थी। मुशरिकाना जो है वो हमारे फ़ेल हुआ करते थे। हम जो है वो पत्थरों को पूजना, इस किस्म के हरक़ात जो है वो हमसे सतत हो रहे थे। अच्छा, फिर मुहर्रम आता, तो फिर धूम-धाम से जो है वो मुहर्रम भी मनाते थे, क्योंकि उस वक़्त हमारी ये हालत थी कि हम ये सोचते थे कि बस खुशियाँ मनाना ही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। तो जो भी ईद आती थी, उस ईद को जो है खुशी-खुशी से मनाओ, यही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। चुनांचे जब मुहर्रम का जो है वो महीना आता था, तो मुहर्रम बड़ी ज़ोर और शोर से हम लोग किया करते थे। खाना-पीना, ऐश-ओ-इशरत में जो है वो ज़िंदगी गुज़र रही थी। मगर अल्लाह ताला के फ़ज़ल से साल की 2 नमाज़ें भी ज़रूर हम पढ़ा करते थे, और मेरा जहाँ तक ख़्याल है, हमने किसी साल भी जो है वो 2 नमाज़ें नहीं छोड़ी। वो ईद उल फ़ितर की 2 रकात नफ़िल नमाज़ थी, और ईद उल अज़हिया की 2 रकात नफ़िल नमाज़ हुआ करती थी। ये तो हमेशा हमने जो है वो बराबर पढ़ना। उसके बाद पाँचों वक़्त की नमाज़ की तो फिर कोई पता ही नहीं था हमें कि नमाज़ भी जो है 5 वक़्त की हुआ करती है, उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। हम तो बस इस्लाम के नाम के सिर्फ़ मुसलमान थे, लेकिन अमली लिहाज़ से अल्लाह के बारे में हमें कोई सही इल्म नहीं था। हमारे प्यारे आका व मुता हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमें जो है वो कोई इल्म नहीं था। तो इस तरह जो है वो हमारी तमद्दुनी ज़िंदगी गुज़रती थी। हम समझते थे ईद की खुशियाँ मना लेना है, खाना-पीना, ऐश करना, ज़िंदगी गुज़ारना है। तो इस तरह की ज़िंदगी से अल्लाह ताला ने हमको निकाला, ये हमारी सबसे बड़ी खुशनुदी है। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अहमदियत के ज़रिए से उसके दरबार में, उसके आस्थाना में रोज़ाना खड़े होने की महज़ अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हमें ये तौफ़ीक दे रहा है। ये सिर्फ़ सिर्फ़ अहमदियत की बदौलत हमें जो है वो ये नसीब। दरअसल मैं हिंदुस्तान के साउथ इलाके में जो है वो हमारा एक छोटा-सा देहात है। सूबा आंध्र प्रदेश, ज़िला कृष्णा से जो है वो मेरा ताल्लुक है।
تو ہمارے جو گاؤں ہے وہ آمد و رفت کے ذرائع بہت کم تھے وہاں پہ، کوئی آنا جانا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے جو ہے وہ مذہب کا بہت کم تصور تھا۔ والد صاحب صرف ایک ایسے شخص تھے گاؤں میں، پورے گاؤں میں، جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے تھے۔ اس وجہ سے والد صاحب کو تھوڑی دین کی نالج تھی، اسلام کی نالج تھی۔ والد صاحب تھوڑا تڑپ رکھتے تھے کہ ہماری یہ حالت ہے، ہم مسلمان ہیں، اور چاہتے تھے کہ ہمارے اندر یعنی پورے گاؤں کے اندر جو ہے تبدیلی آئے، پورے علاقے میں ہی۔ بہرحال والد صاحب جو ہے وہ ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، اس لیے والد صاحب جو ہے غیر احمدیوں کے بہت دور دور تک جو ہے وہ اجتماعات جہاں بھی منعقد ہوتے وہاں پہ جا کے شمولیت اختیار کرنا، اور وہاں سے جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اجتماعات کے موقع پر ہی جو ہے وہ دینیات کے کچھ لٹریچر بھی لا کے لوکل لینگویج تیلگو ہوا کرتی تھی، ہاں تیلگو ہے، تو تیلگو لوکل لینگویج میں جو ہے جو بھی دینیات کی لٹریچر ملتی تھی وہ لے کے آ کے جو ہے والد صاحب گاؤں میں جو ہے لوگوں کو دینا اور ان کو پڑھانا سکھانا، یہ والد صاحب کا کام تھا، کیونکہ والد صاحب کو دین سے جو ہے وہ تھوڑی دلچسپی تھی۔ ایسے دور میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا قافلہ، ایک مبلغ جو جماعت کے تھے ان کا نام ہے مکرم عبدالسلام صاحب، وہ ہمارے گاؤں میں آئے، آ کے جو ہے انہوں نے تبلیغ کی، تو ہمارے والد صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں اس وقت، کیونکہ والد صاحب کو تڑپ تھی اسلام کی کہ کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ اسلام کی تعلیم دینے والا ہو، چنانچہ والد صاحب جو ہے خوشی کے مارے جو ہے وہ ان کو استقبال کیا، اور والد صاحب نے جو ہے ان کو اپنے پاس رکھنے کا وعدہ، ایک معلم کو جو ہے وہ ہمارے پاس بھجوانے کا انتظام جماعت احمدیہ کی طرف سے ہوا، جو کہ کیرلا کے مکرم پی اے ایم سلیم صاحب تھے۔ جب وہ ہمارے گاؤں میں بطور مربی کے تقرر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہی کی تعلیم و تربیت کے اور انہی کے عملی نمونے کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ایک احمدی ہو کر اور جماعت کی خدمت کرنے کی ہمیں جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج ہم ہیں، تو یہ سارے انہی کی خدمات کے نتیجے میں۔ بہرحال وہ جو ہمارے مربی تھے مکرم پی ایم سلیم صاحب کیرلا کے، وہ بہت ہی نیک پارسا انسان تھے، ہماری بڑی اچھی تربیت کی، ہمیں بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہمیں بتائے، خدا کے بارے میں پہلی مرتبہ ان سے سیکھے ہم، اذان دینا ان سے پہلی مرتبہ سیکھے، ہم یہ جانے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہمیں کلمہ بھی انہوں نے سکھایا، اور ان کے جو ہے وہ نمونے سے جو ہے پورے گاؤں میں اثر تھا کہ ایک بہت اچھے جو ہے وہ راستے میں جو ہے گاؤں چلنا شروع ہو گیا۔ اسی اسنا میں ان کی تبلیغی جستجو کے ذریعے سے جو ہے قرب و جوار میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں جو ہے وہ قادیانی آ چکے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے علماؤں کا آواجاہی شروع ہو گئی۔ اس وقت قافلے آنا، گاؤں والوں کو ہر طرح سے بھٹکانا، ان کو جو ہے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ اس وقت سارا گاؤں اللہ کے فضل سے ایک زبان ہو کر جو ہے وہ تمام مخالفین کو جو آ رہے تھے جماعت کی خلاف ورزی میں، جماعت کی مخالفت میں،
बतलाते हुए, तो उन सारे लोगों को एक ही जवाब देना था हमारे गाँव वाले कि भाई ये कुछ भी हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर जब से आए हैं, वो अज़ान देते हैं, अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, गवाही देते हैं एक खुदा की, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, हमें हमारे नबी हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तारुफ़ करवाते हैं, हमें नमाज की तरफ बुलाते हैं, हमें मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो आज आप लोगों को फ़िक्र हुई हमारे इस्लाम की। हम तो कई सालों से, कई सदियों से जो है हम अंधेरे में थे। एक चिराग बनकर जो है वो अहमदी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो आप लोगों को अब फ़िक्र हुई है कि ये जो है वो मुसलमान नहीं है, इनका कलिमा अलग है, इनका किबला अलग है, इनकी नमाज अलग है। तो गाँव वाले जो है वो एक ज़बान होकर जो है मुखालिफिन को गाँव से भगाया करते थे। लेकिन आप जानते हैं अच्छी तरह, सारी दुनिया में हम देख रहे हैं कि मुखालिफिन अहमदियत जब एक तरीके से नाकामी मिलती है तो कई और तरीकों से जो है वो अपने हथकंडे इस्तेमाल करके जो है अपनी मुखालिफत में शिद्दत इख्तियार करना। चुनांचे उन्होंने देखा कि गांव वाले कोई नहीं सुन रहे, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि इनको जो है वो हम बातों से समझाएंगे तो सुनेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने पहले ये कोशिश किया, मुखालिफिन जो है वो पहले ये कोशिश किया कि इनके रिश्तेदारों के ज़रिए से इनको दबाव में लाया जाए। चुनांचे हमारे गाँव से जिन से भी जो है करीबी गाँव में जो रिश्तेदार थे उनसे दबाव डाला गया। फिर चूँकि लोग तो लाइलम थे, जहालत में पड़े हुए थे, इनको इतना समझ भी नहीं था, ना दीन का समझ था, ना दुनिया की समझ थी। तो मुल्ला ने ये चीज़ समझ गया था, तो उन्होंने कई और जो है वो तरीकों से इनको गुमराह करने की कोशिश किया। फिर ये भी बताया कि तुम अगर कादियानियत को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे जो है रिश्तों को हम जो है वो ख़त्म कर देंगे और तुम्हें कोई बच्ची नहीं देगा और तुम्हारे बच्चों को कोई हमारी जो है वो लड़की से जो है ब्याह नहीं कर सकते और कोई काज़ी तुम्हारे पास आके जो है गवर्नमेंट का काज़ी जो है तुम्हारा निकाह नहीं करता, गोया कि तुम्हारी शादियाँ नहीं होंगे और तुम्हारा कोई जनाजा नहीं पड़ता। इस किस्म के जो है कई हथकंडे इस्तेमाल करके, क्योंकि आम जाहिल लोग थे, तो इन जो है वो शैतानी हरबे में आकर जो है डर के जमात को छोड़ दिया। बहरहाल आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो एक करके, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था कि पूरे गाँव में मुसलमान ही रहते, कोई दूसरा मज़हब वाला नहीं रहता हमारे गाँव में। छोटा-सा गाँव है उस वक़्त जब हम बैत किए थे वो सन 1996 की बात है। उस वक़्त जो है वो तकरीबन 100-150 घर सिर्फ़ थे पूरे गाँव में। तो सारे पे दर पे एक-एक करके पूरे के पूरे वो जमात छोड़ के जो है वो चले गए, मुनारिफ हो गए। जैसा कि हज़रत खलीफ़तुल मसीह राबि रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि हम जो खाना खाते हैं, वो सारा का सारा जो है वो खून नहीं बनता, बल्कि उसमें से 1-2 कतरे ही जो है वो खून बनता है, बाकी सब जो है वो ज़ाया जाता है। उसी तरह हुआ, अल्लाह ताला की फ़ज़ल से हम चूँकि ये मुखालिफत जिस तरह बढ़ती गई, हमारे अंदर दिलचस्पी भी बढ़ती गई। हम इस्लाम सीख रहे थे, हम जो है वो कुरान सीख रहे थे, हमें जो है वो अच्छी ज़िंदगी के, अखलाकी ज़िंदगी के जो है वो तरीके सीखने का मौका मिल रहा था। तो हम जो है वो अहमदियत के साथ वाबस्ता रहने की, हमारे घर को हमारे वालिद साहब, हम तीनों भाई और 4 बहनें हैं, तो हम सबको जो है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात के साथ वाबस्ता
बहरहाल वो जो हमारे मौलवी साहब थे वो हमारे पास रहे, मुखालिफिन आते रहे, बहस व मुबाहिसा करते रहे। अल्लाह ताला के फजल से बावजूद हम थोड़े रहने के दलाइल से हर तरह से जो है कामयाबी हमें मिलती थी, और वो मुखालिफ जो थे वो नाकाम होकर वापस चले जाते थे। ये हम करीब से देख रहे थे, सीख रहे थे ये हर चीज़। उस वक़्त हमारे वालिद साहब ने जो हमारे इलाका के जो मुखालिफिन के सरगने थे, उनमें से जो बड़े-बड़े थे, उन लोगों को बुला के वालिद साहब ने जो है बड़े प्यार से उनको समझाया कि देखो, हम एक लंबे अरसे के बाद अल्लाह ताला हमको तौफीक दिया है दीन सीखने की। आप ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अहमदियों का कलिमा गलत है, कलिमा अलग है, इनकी नमाज अलग है, इनकी कुरान अलग है, और ये लोग जो है वो कादियान में हज करते हैं, मक्का में नहीं करेंगे। ये सब बातें जब इनसे सरज़द होंगी, यानी आप कह रहे हो कि इनका कलिमा अलग है, तो उसी वक़्त हमारे वालिद साहब ने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब आप क्या कलिमा पढ़ते हो और क्या कलिमा पढ़ाते हो? तो मौलवी साहब ने कहा कि हमारा कलिमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौलवियों ने कहा कि ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सामने बोलते हैं, पीछे से इनका जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह है, और ये बाद में जाके बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। तो हमारे वालिद साहब ने साफ-सीधा कहा कि भाई देखो, हम तो दिल व जान से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, इसीलिए हम मुसलमान हैं। जिस दिन ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह पढ़ाएंगे, उसी दिन हम जो है धक्के मार के ये मौलवी को, कादियानी मौलवी को यहाँ से निकालेंगे। आप कह रहे हो कि इनका किबला अलग है, तो ये जो है वो हमारा किबला मगरिब की तरफ होके जो है वो है। अगर कादियानियों का किबला मगरिब की तरफ ना हो के मशरिक की तरफ हो जाएगा, शुमाल की तरफ हो जाएगा या जुनूब की तरफ हो जाएगा, जिस दिन उसी दिन हम उनको यहाँ से धक्के मार के निकालेंगे। तो आपको फिक्र किस बात की लगी है? आपको परेशानी किस बात की है? ये तो बताओ। कुरान के दलाइल से तो आपने कोई मुकाबला नहीं करना। अल्लाह ताला के फजल से उस वक़्त हम थोड़े-थोड़े जो है वो दलाइल भी सीखना शुरू कर दिए थे। उर्दू लिखना भी शुरू कर दिए थे, पढ़ना भी शुरू कर दिए थे, उर्दू बात करना भी शुरू कर दिए थे। तो बहरहाल मुखालिफत तेज़ होती गई। हम लोगों को बहुत मुहासर जो है वो किया जाता रहा। लेकिन किसी भी सूरत में, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, अल्लाह ताला महज़ अपने फज़ल से हमें नाकामी नहीं होने दिया। हर जगह जो है हमें कामयाबी अता करता रहा दीनी लिहाज से। यानी जमात अहमदिया की बरीयत ही हमारी कामयाबी थी। इन्हीं अय्याम में मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ मुखालिफिन की हरकत का, ताकि आप लोगों को, जो सारे सामीन सुन रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। बल्कि हमारे ईमान के लिए वो एक इम्तिहान की घड़ी थी। वो सारे जो अमल सरज़द हो रहे थे अहमदिया जमात के मौलवी के ज़रिए से, नमूना भी हमारे सामने था। दूसरी तरफ मुखालिफिन की शरंगेज हरकत भी हमारे सामने थी। बल्कि हम एक तराजू में जो है वो इन चीज़ों को नाप-तोल कर रहे थे। ऐसे घड़ी के वक़्त में जो है वो एक वाक़या सरज़द हुआ था, वो आप लोगों के सामने मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। दरअसल वाक़या ये था कि रमज़ान का महीना था। पहली मर्तबा हम रोज़े रख रहे थे। बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी खुशी के साथ। गर्मी का मौसम था, शिद्दत गर्मी थी, लेकिन बड़े खुश-व-खरोश के साथ, खुश-व-जोश के साथ हम रोज़े रख रहे थे। अल्लाह ताला के साथ जो है कुर्ब का भी हमें मौका मिल रहा था। इन्हीं अय्याम में गालिबन निस्फ़ रमज़ान था, 15 या 16 तारीख़ थी रमज़ान की। मुखालिफिन एक लारी भर के, एक बड़ी-सी लारी भर के जो है कई लोग
दर्जनों लोग, गालिबन जो है वो 20वें लोग इसमें शामिल थे, सारे शरंगेज लोग थे। वो सीधा हमारे पास आए और चूँकि मौलवी साहब को भी जो है हमने अपने पास ही ला लिया था। वालिद साहब ने कहा था कि अब खतरा है कि ये लोग जो है वो पूरे गाँव वाले मुनहरिफ हो गए, गोया कि गाँव वालों के साथ हमारी दुश्मनी बना दी गई। एक तरह से जो है वो सोशल बायकॉट कर दिया गया, हर तरह से परेशानी कर दी गई। तो वालिद साहब ने मौलवी साहब को भी अपने घर के करीब ला लिया था। तो मौलवी साहब इत्तेफ़ाक से जो है वो उस दिन हमारे पास आए हुए थे और जुमा की नमाज़ की तैयारी हो रही थी। ठीक जुमा के वक़्त जो है वो लारी में जो है पूरे उलमा वहाँ पर पहुँच गए और पहुँचते ही जो है वो अचानक हमारे घर वालों पर सबसे पहले जो है हमारे मौलवी साहब पर जो है वो हमला कर दिया। बहुत उनको जो है वो मारा-पीटा गया। इसी तरह मेरे वालिद साहब को भी ज़ुदोकोब किया गया। मेरी एक बहन, जो बड़ी बहन थी, वो हामिला थी। दरिंदों को उन पर भी रहम नहीं आया था। फिर उसके बाद खाकसार, चूँकि मौलवी साहब से बड़ी मोहब्बत लगाव थी और वालिद साहब के साथ बहन के साथ ये हरकत हो रही, तो हम भी जो है वो दिफ़ा करते हुए मुखालिफिन को जो है वो रोकने की कोशिश की। हम इतने बड़ी उम्र भी तो थी नहीं, गालिबन 9वीं या 10वीं क्लास में थे, तो दिफ़ा करने के लिए हम चले गए तो फिर हमारे ऊपर भी हमला किया। तो करीब में जो है वो एक हिंदू दोस्त का खेत था जिसमें वो काम कर रहे थे, वो आके जो है वो मुझे बचा लिया था। उसका कहना है कि वो जब मुझे बचा के अपने पास लेके गया था, तो जो मेरे पीछे पड़े हुए थे, उन लोगों के पास जो है वो हथियार भी थे, कोई चाकू वगैरह भी थी, जिसकी वजह से जो है वो मुझे कत्ल करना चाहते थे। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारी किस्मत में जो है वो जमात की खिदमत की तौफ़ीक लिखी हुई थी। अल्लाह ताला ने हमेशा हमको जो है वो कामयाब करता रहा, मुखालिफिन को नाकाम करता रहा। खलीफा वक़्त की दुआएँ हमेशा हमारे साथ रही हैं। जिस जिस तरह जो है वो मुखालिफिन जो है वो हमारे ऊपर हमला करना, आप यकीन मानिए हर तरह से मेरे बहन-भाइयों को, वालिदैन पर जो है उन्होंने ज़ुल्म किया। ये हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। क्योंकि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि मुखालिफ़त जो होती है वो हमारे लिए, हमारे ईमान के लिए जो है वो एक पुख्तगी के लिए जो है वो बाइस बनती है, खाद का काम करती है। वाक़ई में मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो कौल के मुताबिक जो है वो जिस जिस तरह जो है वो हमारे ऊपर मुसीबत जो है वो खड़ा करते गए, उसी कदर जो है हमारा ईमान पुख्ता होता गया। मेरे एक भाई हैं, बड़े भाई मुकर्रम शेख रियाज़ अहमद साहब, वो भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मुरब्बी हैं, मुअल्लिम सिलसिला हैं। आजकल जो है वो सूबा तेलंगाना के ज़िला खम्मम में जो है ख़िदमत बजालाने की तौफ़ीक पा रहे हैं। ये सारे अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारे ईमान में पुख्तगी का ज़रिया बन चुका था मुखालिफिन का। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस तरह हमारा जो है वो जमात में आने का सिलसिला इस तरह जो है आहिस्ता-आहिस्ता चलता चला गया। हमेशा अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता चला गया। उसी असना में जब मुखालिफिन जो है वो आके बार-बार ये इल्ज़ामात लगा रहे थे कि भाई इन लोगों का जो है वो किबला अलग है, इनका कलिमा अलग है, इनकी नमाज़ अलग है, कुरान अलग है और जो है इन लोगों का हज कादियान में होता है। तो हमारे वालिद साहब का भी ये नीयत थी कि क्यों ना एक मर्तबा जो है वो कादियान को ही जाया जाए और वहाँ जाके जायज़ा लिया जाए।
चुनांचे जलसा सालाना का मौका आया। तो जलसा सालाना को जाने से पहले मुखालिफिन को पता लग गया कि ये जलसे में जाने वाले हैं, तो उन्होंने हर किस्म की जो है वो कोशिश शुरू कर दी हमें रोकने की, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से हमें कोई ताकत जो है रोक नहीं सकी, क्योंकि अल्लाह ताला का फजल हमारे साथ शामिल था। तो हमारे वालिद साहब खुद ये जायजा लेना चाह रहे थे कि वहां जाके देखें असल हकीकत क्या है, क्योंकि पूरे हमारे ज़िला में सिर्फ हमारी एक छोटी-सी जमात, हमारा एक छोटा-सा घर जो है वो जमात में था। ज़िला में फिर मेरे ख़्याल से एक और जमात थी जो बिल्कुल छोटी-सी थी। यही जो है जमात में था, बाकी सारे जो है वो लाखों की तादाद में गैरहमदी थे। और यही बात जो है बार-बार बोलकर जो है वर्गलाया जा रहा था कि देखो तुम्हारी है ही क्या, बस चंद एक के तुम लोग तो कुछ है ही नहीं, हम देखो लाखों में है। तो कहीं न कहीं कशमकश में आ जाया करते थे हमारे वालिदैन भी, तो उनको ये इरादा हुआ कि आखिर बात क्या है? इतनी सारी दुनिया को जो है वो सच्चाई को समझने की तौफ़ीक नहीं मिल रही। क्या यही चंद जो है लोग सच्चे होंगे? तो चुनांचे वालिद साहब ने करीब से जो है वो जाँचने का इरादा किया, तो कादियान के जलसे में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, खाकसार भी दिया था। यकीन मानिए आप, जब हम कादियान पहुँचे थे, तो एक तरह से हमारा काया ही पलट गया था। सबसे पहले जो है वो behश्ती मक़बरा को हमें जो है वो ले जाया गया था। वो कैफ़ियत का मैं आपको बता नहीं सकता, क्या वो खुदादाद जो है वो जो है वो कैफ़ियत थी जो ग़ैब से जो है वो हम पर तारी थी। एक मक़नातीसी कैफ़ जो थी वो उस वक़्त हमारी थी। ख़ास तौर पर मैं जब हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक के सामने खड़े होके दुआ के लिए खड़े हो गया, तो मेरे अंदर एक किस्म की जो है वो एक किस्म की कैफ़ियत पैदा हो गई, एक किस्म की जो है वो हालाँकि उससे पहले कभी मुझसे जो है इस किस्म का जो है वो तजुर्बा नहीं हुआ था। तो उस वक़्त जो है फिर मेरे दिल को एक किस्म की इत्मीनान हुआ कि ये कोई झूठे का मुकाम नहीं है, ये सच्चे नबी का मकाम है, इसलिए अल्लाह ताला जो है वो इस जगह इतनी असर रखा है। झूठा होता तो इस कदर जो है वो रूहानी असर नहीं होता। फिर हम मकामात मुक़द्दसा जैसे दारुल मसीह है, बैतुद दुआ है, फिर मसाजिद है, लंगर खाना वग़ैरह, जब ये कादियान के माहौल में हमने घूमा, तो आप यकीन मानिए कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारा ईमान में मुकम्मल जो है वो ताज़गी पैदा हो गई। यकीन हो गया था कि ये सच्चों की जमात है। तो वो तो सवालात ही पैदा नहीं हुए, वो शकूक ही नहीं रहे कि इनका कलमा अलग, इनकी नमाज़ अलग या इनका क़िबला अलग या इनका हज, ये वो सब। ये सब उलमा के ढकोसले होते हैं, जो वहाँ जाने के बाद हम पर वाज़ेह हो चुके थे। जब ये सब जो है शकूक हमसे दूर होते चले गए, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जो है हमारे जो भी डाउट्स थे आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर होने लगे। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह के जमात अहमदिया में बड़ी पुख्तगी के साथ जो है वो शामिल होने की अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दिया। हमारे वालिद साहब जो है वो हमेशा कहते हैं, और हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उसके बाद मुझे भी जो है वालिद साहब ने कहा कि आप भी चले जाओ, आप भी जमात की खिदमत के लिए जो है वो अपने आप को वक़्फ़ कर दो। चुनांचे मैं भी जो है वो कादियान चला गया, जामिअतुल मुबश्शिरीन में जो है वो दाखिला ले लिया। फिर मैं वहाँ पढ़ाई मुकम्मल करके अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 17 साल से जो है वो जमाती खिदमत की मुझे अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दिया। सूबा तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला में, महबूब नगर और निज़ामाबाद नगर, और आखिर में अब जो है वो हैदराबाद में मेहदीपट्टनम इलाके में बतौर मुअल्लिम सिलसिला ख़िदमत बजा लाने की अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे रहा है।
تو میں ایک اور بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بیعت کر لیا پھر جو ہے ہم خاموش بیٹھ گئے. ہم جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہتے ہیں، جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں کیا وہ سچا مقام ہے کہ نہیں ہے. باوجود اس کے کہ ہم بے شمار قرآن مجید کے اور احادیث کے دلائل کی تصدیق کرنے کے، بے شمار اقوال بزرگان کی دلائل کی سچائی کے ثابت ہونے کے، کبھی کبھی میں خود یہ سوچتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اگر ان سب کو ایک طرف رکھ کر دوسری طرف دنیا کو دیکھتا ہوں کہ اس سے ہٹ کر بھی کیا کوئی راہ راست ہمارے سامنے موجود ہے، تو سب سے پہلے ذہن چلا جاتا ہے کہ جہاں ہمارے پیارے آقا مطہر تقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکہ میں، تو کیا ان کے پاس جانے سے راہ ہدایت مل سکتی ہے؟ تو ان کے حالات پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس کا حل نہیں ملتا، اس کا جواب نہیں ملتا، وہاں سے مایوسی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. پھر یوں سوچتے ہیں کہ چلو وہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے ہدایت کی. بر صغیر میں، ہند و پاکستان میں، چونکہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اولیاء اللہ یہاں سے گزرے ہیں، اسلام کی خدمت کرنے والے یہاں سے گزرے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کے نام سے بنائی جانے والی ملک پاکستان میں ہو سکتا ہے ہدایت کا ذریعہ ہو. تو جب پاکستان کی حکومت کی طرف یا پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سوائے دہشت گردی کے اور کیا دکھائی دیتا ہے؟ وہاں پہ سوائے تکفیر بازی کے اور کیا ہے وہاں پر؟ اور سیاسی مفاد کے واسطے مذہب کو استعمال کرنے کے علاوہ وہاں تو کوئی ایسا راہ راست تو دکھائی نہیں دیتا. چنانچہ وہاں سے بھی اپنی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں. پھر طرف کے بڑے بڑے علماء کی طرف توجہ کر کے دیکھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کوئی راہ راست ملے. تو ایک ایک کر کے بڑے بڑے جو ہے علماء کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی جو ہے وہ حالات زندگی تو ساری دنیا کے سامنے موجود ہے. علماء شر من تحت ادیم السماء کے مطابق آج علماء کی خصلت ہو چکی. تو پھر جب یہ سب جائزہ لینے کے بعد ہمارا دل اطمینان کو پہنچتا ہے کہ نہیں، ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ سچی جگہ ہے. اور ہماری یہ دعا کہ ہم بار بار جو کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس سے ہمارا اور جو ہے وہ ایمان پختہ ہوتا ہے کہ جس راستے میں ہم کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت ہی استقامت والا راستہ ہے. الحمدللہ کہ آج تک خاکسار کو بھی کئی مولویوں کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کے دوران بحث مباحثہ کرنے کا اتفاق ہوا، لیکن کسی ایک مولوی کو ہمارے دلائل کو کاٹنے کی توفیق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے ایسے دلائل ہیں جو بالکل جو ہے وہ پکے دلائل ہیں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. جب بھی یہ دلائل کو ہم دہراتے ہیں تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. ایک طرف ہم علماء کی حالت دیکھتے ہیں، دوسری طرف جو ہے جماعت کی حالت کو دیکھتے ہیں، تو زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے جو ہے جماعت احمدیہ میں داخل ہو گئے، بلکہ ہمیشہ اپنے ایمان کے تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے ہمیں یہی بات واضح ہوتی ہے روز روشن کی طرح کہ جماعت احمدیہ ہی واحد جماعت ہے جو بالکل سچی جماعت ہے. پھر خلافت کا نظام، آپ
یقین ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری جب بھی کوئی، میں آپ اپنی زندگی کا جو ہے وہ تجربہ بتا رہا ہوں، جب بھی ہمیں کوئی جو ہے وہ پریشانی کا جو ہے وہ سامنا ہوا تو ہم خلیفہ وقت کی بارگاہ میں خط لکھ دیا اور بے فکر ہو گیا، اور آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام مشکلات کو محض خلیفہ وقت کی دعاؤں کے بدولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹالتا رہا، اور ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے ایمان میں تقویت ہوتی رہی۔ تو وہی ہماری پرانی زندگی کے حالات کو سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھا کر ہم کو، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کے مطابق محض اپنے فضل سے جو ہے ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمایا۔ آج الحمدللہ ایک سچی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی اور دوسروں کو سچائی کی طرف بلانے کی محض اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ یہ سارے خلافت کی برکت ہے، خلیفہ وقت کی برکت ہے۔ جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا، جتنے بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، مولوی ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کیا اس قدر سچی جماعت ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جو ہے وہ سچائی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گاؤں میں الحمدللہ اس کے علاوہ اور بھی بعض لوگوں نے بیعت کر کے پھر شامل ہو گئے، اور ایک اور جو ہے وہ معلم سلسلہ کے خدمات غیر احمدیوں میں سے آ کے جو ہے وہ بجا لا رہے ہیں، ان کا نام مکرم بابر احمد صاحب، اور ایک عارضی مسجد بھی وہاں پہ بنا کر باقاعدہ نماز بھی جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے۔ ایک معلم سلسلہ کی جو ہے وہ وہاں پہ تقرری ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بے شک ہماری تعداد بہت چھوٹی ہے، لیکن باقاعدہ جو ہے ہمارے گھر والے جتنے بھی ہمارے جماعت کے احباب ہیں وہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں۔ باوجود اس کے ایک چھوٹی مسجد ہونے کے باقاعدہ جو ہے ہمیشہ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، ہمیشہ 5 وقت کی نماز میں جو ہے مستورات آ رہی ہوتی ہیں، بچے آ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جو ہے وہ آج کل جو ہے علاقے کے پورے لوگ دنگ ہیں کہ جس کو جو ہے وہ کافر کہا جاتا تھا وہ 5 وقتہ نمازی ہو گئے ہیں، اور جو مسلمان ہونے کے دعویٰ کرتے تھے ان کی مسجد تو ویران ہے۔ تو یہ سب جماعت احمدیہ کے بدولت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب میسر فرمایا ہے۔ جی رضی صاحب۔ جزاک اللہ ربی صاحب، بہت ہی آپ نے آج ہمیں ایمان افروز واقعہ سنایا ہے۔ بس میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو مخالفین اس انٹرویو کو دیکھیں گے، اگر آپ ان کو بتا سکیں کہ ان کو کون سی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان کو بھی حقیقی اسلام کے جو اصل عقائد ہیں ان کا پتہ تو لگ میں سکے۔ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو خاص طور پر میں سب سے پہلے تو قرآن اور حدیث کو جو ہے پڑھنے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ پڑھتے تو ہیں لیکن اصل مفہوم سے محروم ہیں، اس لیے وہ قرآن کو اپنے بتائے ہوئے علماء کی تفسیروں میں جا کر گمراہ ہونے کی بجائے جو اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بہت سارے جو ہے وہ غیر احمدی مولویوں کے ساتھ بحث ہوتی رہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی آیت پر، خاتم النبیین کی آیت کو لے کر جو ہے وہ لوگ یہ تجزیہ نکالتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ کیسی
जो है वो उन लोगों की तशरीह है और कैसी तफसीर है, देख के हंसी आती है कि भाई महज आप लोग इस बिना पे कि खातमा का मतलब जो है मुहर है, इस बिना पे आपने ये तज्जिया निकाला कि चूंकि एक पेपर पे जो है मुहर आखिर में लगाई जाती है, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। इससे हटकर तो कोई और वजह ही नहीं बन सकती कि खातमन नबीयीन से मुराद जो है आखिरी नबी है। सिर्फ ये एक वजह बताकर जो है वो लोग ये तज्जिया निकालते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। बहुत अफसोस होता है कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत क्या सिर्फ पेपर के एक कोने में जो है थप्पा मारने पर मुनहसर है? समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या कभी उन्होंने ये सोचा नहीं कि हो सकता है कि आइंदा जमाने में जो है वो आखिर में जो है पेपर में ठप्पा लगाने की बजाय शुरू में भी हो सकता है लगा लिया जाए, या हो सकता है बीच में भी कहीं जो है वो मुहर लगा दी जाए। आइंदा जमाने में अगर किसी बिना पर कागज के बीच में अगर मुहर लगा दी जाए तो इससे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत में फर्क आ जाएगा। कभी ये सोचा नहीं आप लोग? आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत क्या सिर्फ एक पेपर की अहमियत रखती है? बात को समझने की कोशिश करें। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई तफसीर को पढ़ने की कोशिश करें, सही मफ़हूम को समझने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे सकता है। आजकल पेपर के आखिर पे मुहर नहीं लगाया जाता, बीच में भी लगाया जाता है। तो इससे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिमियत खत्म हो गई। बात दरअसल ये है, हमें समझने की ज़रूरत ये है, यहाँ पर जो समझने से जो है सारे मुखालिफिन कासिर हैं। वहाँ पे मुहर की अहमियत को समझने की बजाय कि एक शख्स अगर मुहर लगाता है तो उसकी क्या अफ़ज़लियत है, उसको समझने की बजाय जो है वो पेपर के शुरू में लगाया गया या दरमियानी हिस्से में लगाया गया या आखिरी हिस्से में लगाया गया, ये कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि हम ये देखना चाहिए कि वो मुहर लगाने की क्या अहमियत है, जिसकी बिना पर मुहर लगाई जा रही है। यहाँ पर जो है वो अफ़ज़लियत का जो है बयान हो रहा होता है। इसको समझने की बजाय आप लोग सिर्फ इस बिना पे जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान रहे हो। एक छोटी-सी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो ये कैसी तज्ज़िया है जो एक बहुत बड़ी बात में आप जो है वो धोखा खा रहे हैं। तो कई और सारी बातें हैं जो कुरान की और हदीस की आप समझ नहीं पा रहे हो। आप यकीन करें कि बेशुमार ऐसे अहादीस हैं जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिदक़ में, मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्चाई में खड़े होकर गवाही दे रही हैं। जब भी हम जो है मुखालिफिन के सामने जब इन अहादीस को पेश करते हैं तो वो कहते हैं कि ये ज़ईफ़ हदीस है, और अपनी तरफ से बनाई हुई हदीसों को जो है लाकर कहते हैं कि ये सहीहैन में है। तो हम ऐसे मुखालिफिन को जो है हम कहते हैं कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले जाकर जो है बेशक वो ज़ईफ़ हो या सही हो, तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया था कि मेरे हक़ में तुम जो है कुछ हदीस भी लिखना, ख़्वाह वो ज़ईफ़ हो या सही हो। क्या ये हो सकता है? हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जब अहादीस में बयान आया है तो हो सकता है कि हमारी समझने में गलती हुई है। बाज़ सहीहों को जो है हमने गलत समझ के रखा है और बाज़ गलतों को जो है हमने सही समझ के रखा है। तो सबसे पहले मैं कुरान को और हदीस को सही मानों में जो है पढ़ने की दरख्वास्त करता हूँ। आप जमात अहमदिया की जो तफसीर करदा कुरान है, आप उसको पढ़ें। आप जो है वो खाली ज़हन होकर, ऐसा नहीं कि हम ये ज़बरदस्ती नहीं कहते कि आप अहमदी हो जाओ, आपको इजाज़त है जिस मज़हब को चाहे इख्तियार करने की। आप खाली ज़हन होकर जो है उसको पढ़ने की कोशिश करें तो फिर अल्लाह ताला राह रास्त आपको देगा। तो फिर मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताबों के ही क्या कहना, जो आप लोग पढ़ते हो कुरान, उसी में जो है आप धोखा खा रहे हो।
उसी की इस्लाह के लिए हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए हैं। तो आप जब उनकी किताबों को पढ़ते हैं, मैं सिर्फ़ 1-2 की निशानदेही नहीं करना चाहता, बल्कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की सारी किताबों को जब आप देखोगे, एक-एक किताब में रूहानियत से भरी हुई जो है वो किताबें मौजूद हमारे सामने मौजूद हैं। आप उसको पढ़ें। एक झूठा इंसान खुदा की वहदानियत पर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे को दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाने की तड़प में 80 से ज़ायद कुतुब लिखता है। क्या एक झूठा इंसान लिख सकता है? आप सोचें। हमारे प्यारे जो मुखालिफीन दोस्त हैं, उनके जो बुजुर्गान गुज़रे हैं, उन्होंने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमात का, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई का आप लोगों के बयान किए हुए हैं। आजकल जिस तरह के आप छोटे-छोटे इल्ज़ामात के पीछे पड़ के मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बयानशुदा जो है, कहीं से एक जो है वो सफ़े की एक लाइन को निकाल के आप जो है वो तशहीर कर देते हैं कि मिर्ज़ा साहब झूठे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। इन चीज़ों के पीछे पड़ने की बजाय आपके जो रहनुमा हैं, आपके जो फ़िरक़ों के जो बुज़ुर्गान हैं, उनके जो है वो ख़यालात को जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ बयान हुए हैं, आप उनका जायज़ा लें। आपको पता लगेगा कि वाक़ई में मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में क्या काम किए गुज़रे हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अगर उस ज़माने में बैसत ना होती, ज़ाहिर है आपके उलमा भी जानते हैं, सारी दुनिया इस बात की गवाह है कि इस्लाम का नामो-निशान बाकी नहीं रहा। बहरहाल ये तो खुदा ताला की तरफ से मसलियत थी कि उसने भेजना था। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था कि तेरी दरगाह में तो बहुत इशारे थे, लेकिन तूने मुझे जो है पसंद किया, तू मुझे खड़ा किया। तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, तो तू मेरी मदद फरमा। तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है हमेशा कामयाबी अता फरमाई, जिसके बिना पे आज दुनिया के कोने-कोने जो है अहमदियत फैली हुई है। मैं खुद उसका एक जो है वो निशान हूँ। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कोई एक इल्हाम हुआ था कि अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। हमारा जो ज़िला है वो ज़मीन का एक किनारा है, वहाँ से मैं खुद हूँ। किस शान के साथ मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोई पूरी हो गई। क्या झूठे इंसान की एक बात भी पूरी होगी? हज़ारों, लाखों जो है मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बातें पूरी हो रही हैं। तो क्या आपको तौफ़ीक नहीं मिली कि किसी एक बात पे भी जो है आप ईमान ले आएँ? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ आप देखें। आपको यकीन था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे खड़े हो गए और खटखटाने लगे, जबकि आपको बहुत जो है भटकाने की कोशिश की गई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वास्ता देकर, खुदा का वास्ता देकर कहा कि या रसूलल्लाह आप बताएँ क्या आपने नबूवत का दावा किया है? क्योंकि आपको कामिल यकीन था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोल सकते। क्योंकि फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़बली अफ़ला ताक़िलून, आपकी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ गुज़ार कर देखा। इसी तरह मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आप देखें, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक-एक किताब को पढ़ने की कोशिश करें। दुनिया मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब से सैराब होकर कितने लोग अहमदियत इस सच्चे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इस्लामी उसूल की फ़िलॉसफ़ी है। मैंने एक किताब लेक्चर लाहौर पढ़कर मेरा काया ही पलट गया था। खुदा शनासी मुझे मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की उस किताब को पढ़ने के बाद जो है हुई थी। तो मैं तमाम हमारे मुखालिफिन जो दोस्त हैं, गैर-अहमदी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की हर किताब जो है वो रूहानियत से भरी हुई है। इसलिए आप उसको जो है वो खाली ज़हन होकर पढ़ने की कोशिश करें और दुआ करें
کیونکہ اب تو سوائے مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو اور اس زمانے میں خلافت کو پکڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ہماری کامیابی کا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی حالات، آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر جو ماتم مچا ہوا ہے، مسلمان جو بکھر رہے ہیں اور بکھرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی ضمیر پکار پکار کر جو ہے چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں خلافت چاہیے، لیکن کیا آپ تاریخ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تاریخ اٹھا کر آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کیا خلافت انسان کی کوششوں سے بنتی ہے یا خدا تعالیٰ کے ذریعے سے دنیا میں آج تک قائم کی گئی ہے؟ یہاں ایک خلیفہ جو ہے وہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بنایا ہے، اس کی طرف دوڑو اور دیکھو کہ کیا واقعی میں خدا کا جو ہے بنایا ہوا خلیفہ تو نہیں۔ اگر خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوگا تو پھر تمہاری کیا جو ہے وہ عاقبت ہوگی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اس زمانے کے حالات کے حساب سے آپ کو جو صحیح راستہ ہے وہ جماعت احمدیہ ہے، اس کو سمجھنے کی اور خلافت کے ساتھ وابستہ رہنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ نور بھائی، ماشاء اللہ بہت ہی آپ نے آج ہمیں ایمان افروز واقعہ سنایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور توفیق دے کہ جماعت کی خدمت کریں، اور آپ کی پورے خاندان کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ سارے جو اس کو دیکھیں دعا میں ان کو سب کو یاد رکھیں۔ تو نور بھائی جزاک اللہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ وسلم جزاک۔ Jazakallah, Assalamu alaikum. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على سيدنا صل على محمد